Good afternoon, guys. Visible? So guys, what topology we will be using? This is, it is, this is, this is, this is R. Any problem? I will configure this guy as DHCP server. Fine. Any issue? User 2, user 3, user. Sorry. Done. Topology is clear. Switch. Fine. Look here. Done. Done. Now default interface FA0/0. Done. Any problem? Now look here. Let's say I'm using network. Fine. Any problem? No. This device is IP address. I don't have to define. Host name. User. It's not working. Host name. User 3. Sorry, let it name as user
4. Interface FS0/0 no shut. Done. Do show. Done. No. Done. User 5. Any problem? So there is no user 3. I am removing it. Fine. So let's come on switch 1. Show CDP neighbor. Done. Sorry, host name. Look here. Who is the neighbor? Who is the neighbor now? Wait for some time. We will get all the entries. Show interface status. 1, 2 are connected. 4 and 5 are also connected. 3 is not connected. We are not using 3 also. Show CDP neighbor. 2, 5 and DSCP. Still, we are waiting for 1 and 4. Okay, let me check here. Okay, we are waiting for only user 4. Let me check. Show CDP interface fast Ethernet 0/0. CDP is enabled. Okay. With switch 4 devices are connected. 1 is DSCP server and 3 are users. Clear? First of all, let me show you how normal DSCP will work. That practical we have already covered. Fine. So in this case, I will be configuring R1 as DSCP server. How? Okay, what IP address I have assigned to it? 192.168.1. Clear? Now look here. First of all, I am running this command. I am excluding sub addresses. Which addresses? From 1.1 to 1.100 I am excluding. Fine. Pool name. Pool underscore 1 network. With classful network, if I will not advertise subnet mask, it will take as it is. Fine. It is important with classless network. Fine. Now, second command. 1.1. This thing is clear. Now I must go to my user. Look here. IP address DSCP client ID fast Ethernet 0/. Next thing, IP address DSCP client ID fast Ethernet 0/. Next thing, IP address DSCP client ID fast Ethernet 0/. How many IPs are assigned? Sorry.
How many addresses are present in the pool? How many we have assigned? 3. Any problem? Next address that this pool will assign? 104. Any problem? No. Now let's say first practical that we want to do is of port security. Fine. Now let's say show IP interface brief, exclude unassigned. Which user is getting the IP? Which IP user is getting? 101 method DSCP ping 1 dot 10. All users can communicate with each other. Any problem? It means switch also learns the you can see here these MAC addresses. Any problem? No. Next thing. Now I want to configure port security. Let's say I want to configure port security for which user? User 2. How I will do it? First of all, I will run the command show port security interface fast ethernet 1/0/2. Fine. By default, port security for this interface is disabled. Port status is secure down because port security is not enabled. Violation mode by default is shut down. Maximum MAC addresses 1. Total MAC addresses 0. Configured MAC addresses 0. Sticky MAC addresses 0. Last source address no. भाई अब तक मैं पोर्ट सिक्योरिटी को एनेबल नहीं करूंगा तब तक पोर्ट सिक्योरिटी अपना काम करना शुरू. ये लास्ट सोर्स एड्रेस का मतलब है जो लास्ट एड्रेस इस पोर्ट पे हिट किया था. और उसके बाद कॉलन के बाद ऑप्शन है वीलैन का और वायलेशन काउंट बता रहा है कितनी बार वायलेशन हुआ है. फाइन. अब मैं कैसे एनेबल करूंगा? मैंने कमांड चलाई स्विच पोर्ट सिक्योरिटी बट उसने क्या बोला कि पोर्ट किस मोड में है? डायनेमिक ऑटो. तो मैंने क्या किया? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. मैंने फिर कमांड चलाई स्विच पोर्ट सिक्योरिटी. नेक्स्ट कमांड मैक्सिमम. मैंने मैक्सिमम लेट से कितना लिख दिया? 2. फाइन. अब मैंने क्या किया? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस. एक तो मैंने मार्क कर दिया स्टिकी. दूसरे के साथ मैंने क्या किया? मैन्युअली स्पेसिफाई. क्या किया? मैन्युअली स्पेसिफाई. मैं यूजर 2 पे गया. मैंने देखा शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 सेक्शन एड्रेस. क्या मैक एड्रेस है इसका? ये. एनी प्रॉब्लम? मैंने क्या किया? इसमें एक लेटर आखिरी वर्ड चेंज कर दिया. 0 का क्या कर दिया? 1. और ये कैसे डाल दिया? मैन्युअली. अब बाय डिफॉल्ट ही वायलेशन क्या है? अब देखो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस पे गया. ये इंटरफेस अभी क्या है? अप है. वायलेशन मोड बाय डिफॉल्ट क्या है? मैंने मैक्सिमम मैक एड्रेस अलाउड कितने किए हैं? 2. टोटल मैक एड्रेसेस कितने लर्न हुआ है? 2. एक कैसे है? कॉन्फ़िगर. दूसरा क्या है? स्टिकी. लास्ट मैक एड्रेस हिट कौन सा किया था? 0. कौन सी वीलैन में? 1 में. अब तक एक भी सिक्योरिटी वायलेशन काउंट नहीं हुआ. एग्री? कोई प्रॉब्लम नहीं. अब लेट्स से यूजर ने फिर पिंग करने की कोशिश की 192.168.1.1 हो गया. फिर किससे हिट किया मैंने? 0 से. अब मैंने यहां पे आगे क्या किया? मैक एड्रेस ये अपना क्या कर दिया? चेंज. यार मैं मैक एड्रेस चेंज करूंगा ना तो इंटरफेस डाउन जाके दोबारा आप पाएगा. ठीक है जी. अब देखो अब कौन से इंटरफेस से मैं हिट कर रहा था? अभी मैंने हिट तो किया ही नहीं. हिट करूंगा जाके.
हो गया? भाई यू क्या हो रहा है? सॉरी। Done? Done. I'm getting the response. इस बार हिट किससे किया? 1 से। कोई प्रॉब्लम? तो इस पोर्ट पे ये दो पर्टिकुलर मैक एड्रेस अलाउड रहेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर है कि एक पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस लर्न हो सकते हैं, देख लेना आप एक बार प्रैक्टिकल करके। फाइन। और अब अगर मैं अपने मैक एड्रेस को चेंज कर देता हूं, लेट्स से जैसे ही पोर्ट अप आया क्या हो गई? वायलेशन हो गई। कौन से पोर्ट पे? किस में पुट कर दिया इसको? कोई मैंने एरर डिसेबल रिकवरी कॉन्फ़िगर क्या दिखा रहा है? किस मोड में पड़ा है पोर्ट? एरर डिसेबल्ड। तो एरर डिसेबल में पता है आपको मैं रिकवरी भी सेट कर सकता हूं। फाइन। तो अगर मुझे पोर्ट को बाहर लाना है एरर डिसेबल से तो क्या करना पड़ेगा? पहले शट और फिर आ गया कॉज्ड बाय विच मैक एड्रेस दिस। अब देखो जी ध्यान से इधर कौन सा मैक एड्रेस हिट कर रहा है? अब ये और वायलेशन हो चुका है। ठीक है जी। अब देखो शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस कह रहा है भाई ये तो एड्रेस है जो क्या है? स्टिकी है। और ये आपने एड्रेस सिक्योरली कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है जी। अब कितने मैक एड्रेस और लर्न हो सकते हैं? 6144। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग ध्यान से देखना यार। अब मैं क्या कर रहा हूं? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन क्या कर दी मैंने? प्रोटेक्ट। इस इंटरफेस में दोबारा शट कर दिया और इंटरफेस को फिर क्या कर दिया? वो शट करा। वायलेशन मोड क्या है? प्रोटेक्ट। अभी भी हिट कौन कर रहा है? देखो 2 से हिट कराऊं अब दोबारा पिंग होगा? नहीं पिंग होगा लेकिन कोई भी वायलेशन काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मोड क्या है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है? अनऑथोराइज्ड डेटा को ड्रॉप कर दो, ऑथोराइज्ड डेटा को पास कर दो। फाइन। कोई प्रॉब्लम? और कभी भी कोई लॉग जनरेट डन। नेक्स्ट थिंग हिट करवाऊं। अभी भी 2 ही आ रहा है। मैं चेंज कर दिया अब तो। वायलेशन काउंट तो आएगा ही नहीं ना। अरे ठीक है ना। इसमें यार ये लास्ट सोर्स मैक एड्रेस को लर्न ही नहीं करता होगा। किस केस में?
प्रोटेक्ट में, तभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि वायलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है जी। अब मैं इस मोड को क्या कर सकता हूं, सॉरी, पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन, रिस्ट्रिक्ट। अब देखो रिस्ट्रिक्ट में क्या है, ट्रैफिक गया, किससे हिट कर रहा है, 1 से। लेट्स से मैंने वहां जाके मैक एड्रेस क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, 2 करते, एक वायलेशन हो गया मैक एड्रेस से। किससे वायलेशन हुआ है, 2 से। सिक्योरिटी वायलेशन काउंट क्या हो गया, 1। इसका मतलब इस बार पोर्ट शट नहीं होगा लेकिन वायलेशन होगा, लॉक जनरेट होगा। देखो दोबारा, अब मैंने दोबारा मैक एड्रेस को क्या कर दिया, दोबारा पोर्ट क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। देखो दोबारा हिट करके दिखा देता हूं आपको। हिट कौन कर रहा है, और कोई वायलेशन अब नहीं हो रहा। तो जब जब रिस्ट्रिक्ट के केस में वायलेशन होगा मुझे पता चलता रहेगा। दिस थिंग इज क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर पोर्ट सिक्योरिटी। आ तो रहा है आपके सामने, जैसे जब डाउन चालू हो जाएगा वो तो ऑटोमेटिक है, हमको मैनुअली चेक करना होगा। यार सिर्फ लॉक पे सेव करा और लॉक देख, यही होता तरीका लॉक देखने का, और कैसे देखोगे। हटा दी। किसी भी इंटरफेस पे पोर्ट सिक्योरिटी अब कॉन्फ़िगर्ड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा प्रैक्टिकल क्या है, डीएससीपी स्नूपिंग। सबसे पहले क्या करता हूं, देखो इससे भी एक अच्छा तरीका बताता हूं आपको। ये अपनी आईपी को क्या कर रहा है, ये भी अपनी आईपी को क्या करेगा, ये भी अपनी आईपी को क्या कर देगा, रिलीज। ठीक है जी, ये बेनिफिट हुआ रिलीज करवाने का। तो उसने बाइंडिंग को क्या कर दिया, डिलीट। अभी भी नेक्स्ट आईपी कौन सी जाएगी, 104। अब मैं स्विच पे क्या एनेबल कर रहा हूं, देखो सॉरी, स्विच पे मेरे को एनेबल करना है आईपी डीएससीपी स्नूपिंग। बाय डिफॉल्ट सारे यूजर किस वीलैन में है, वीलैन 1 कर दिया एनेबल। अब देखो शट किया इंटरफेस को, फिर क्या कर दिया, इंटरफेस को शट क्या किया और फिर क्या कर दिया कि वो दोबारा क्या करे, रिक्वेस्ट भेजे, शट किया, फिर इंटरफेस को क्या कर दिया, नो शट। ठीक है जी, दिख गया यहाँ पे 2 भी अप आ रहा है, 4 भी दोबारा जाके अप आ रहा है डाउन, और 5 भी दोबारा डाउन जाके क्या आ रहा है, अप। किसी यूजर को आईपी मिला क्योंकि स्विच पे क्या होना है, डीएससीपी स्नूपिंग, जिसकी वजह से सारे पोर्ट क्या हैं
अनट्रस्टेड। क्या है सारे पोर्ट्स? तो मैंने आपको बताया था जिस पोर्ट में मेरा कौन कनेक्टेड है, 1 पे, मेरे को उस पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा, आईपी डीएससीपी स्नूपिंग। बट मैंने आपको साथ ही साथ एक बात और बताई थी, वो दिखा भी देता हूं। डीबग आईपी डीएससीपी सर्वर, देखो जी, लेट्स से यूजर है इंटरफेस fa0/0, एक बार देख लेते हैं, डू शो रन इंटरफेस fa0/0। अब देखो जी, इंटरफेस fa0/0 मैंने इंटरफेस को क्या किया, शट, फिर क्या किया, शट कर देता हूं आपके सामने, देखो जी। क्या कह रहा है, बिकॉज GI एड्रेस इज 0। मैंने बताया था जब भी मैं स्विच पे DHCP स्नूपिंग ऑन करूंगा वो GI एड्रेस को क्या करके भेजने लग जाएगा, 0। अब या तो मैं वहां पे जाके ऑप्शन 82 को ही क्या कर दूं, डिसेबल, या फिर, बात समझ में आई ना भाई? देखो यार, यही प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको दिखाया कि GI एड्रेस क्या आ रहा है, 0, जिस वजह से IP नहीं मिल रही। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, एक मिनट, क्या भाई, IP DHCP ऑप्शन, क्या कमांड दिला दी मैंने, IP DHCP रिले इंफॉर्मेशन। भाई जो भी आए उसको ट्रस्टेड मान लियो, GI एड्रेस 0 भी आया उसको क्या मान लियो, ट्रस्टेड। दोबारा डीबग चलाऊं, पहले एग्जिट मारता हूं यहां से, अब क्या चलाऊंगा दोबारा, दोबारा मंगवाता हूं इस गरीब से IP। ठीक है जी, एक मिनट बस, मिल गई, इतनी तो देर नहीं लगी। चलो IP मिल गई सबको, गरीबों को, देखो भाई हर गरीब को IP मिल गई। तो पहला तरीका तो क्या था, मैं अपने राउटर को बोल दूंगा भाई देख, GI एड्रेस आए ना आए तेरे को IP देनी है, तेरे को रिले को ट्रस्ट करना है, जैसा मर्जी रिले हो। दूसरा तरीका क्या है, मैं स्विच पे रिले ऑप्शन ही क्या कर सकता हूं, सॉरी ऑप्शन 82 ही क्या कर सकता हूं, डिसेबल। ठीक है जी, ठीक है। कैसे एनेबल करते हैं ऑप्शन 82 दिखा देता हूं, देखो, IP DHCP यार एक मिनट, स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन, इस कमांड को क्या करना है, नो। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग चेक कैसे करना है, हुआ या नहीं हुआ, शो IP DHCP स्नूपिंग, क्या लिखा हुआ है, इंसर्शन ऑफ ऑप्शन 82 इज डिसेबल्ड। कौन से पोर्ट को ट्रस्ट बना रखे है आपने, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो, शो IP DHCP बाइंडिंग, शो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग, गलत कमांड चला दी थी मैंने। तो स्नूपिंग बाइंडिंग में क्या दिखा रहा है भाई, ये मैक एड्रेस है, ये यूजर है, और ये क्या है, पोर्ट है। ये इंफॉर्मेशन उसने कैसे बनाई है, DHCP पैकेट्स को इंस्पेक्ट करके। कैसे, DHCP पैकेट्स को इंस्पेक्ट करके। दिस थिंग इज क्लियर। तो अब मैं क्या कर सकता हूं यार, इस डेटाबेस के बेसिस पे दो फीचर एनेबल कर सकता हूं स्विच पे। एक तो है IP सोर्स गार्ड, और दूसरा क्या है, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। IP सोर्स गार्ड क्या है, देखो, लेट्स से मेरे तीनों यूजर्स को IP मिल रहा है, हाँ जी, एक को 4 मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है, एक को 6 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो जी, लेट्स से मैं यूजर नंबर 5 के लिए क्या एनेबल करना चाहता हूं, सोर्स गार्ड। कैसे एनेबल करूंगा, इंटरफेस पे जाऊंगा, क्या लिखूंगा यहां, IP वेरीफाई। यार भूल जाता है आदमी कमांड, दैट इज नॉट अ बिग थिंग।
पोर्ट सिक्योरिटी लगा दूंगा तो वो किसको चेक करने लग जाएगा? मैक एड्रेस को भी, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट किसको चेक करेगा? सिर्फ आईपी को। देखो जी, इतनी कमांड चलानी थी, शो आईपी, शो आईपी वेरीफाई सोर्स। क्या कह रहा है देखो, पोर्ट 1/0/5 पे क्या फिल्टर कर रहा है वो? फिल्टर मोड क्या है अभी? आईपी एड्रेस असाइंड क्या है? 6। वीलन कौन सी है? मैक एड्रेस को अभी वो चेक नहीं कर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या किया, गुस्ताखी। मैंने क्या की? गुस्ताखी। देखो कैसे मैं बन रहा था अपने आप में चालाक। आईपी एड्रेस मैंने कहा भाई मैं थोड़ा अपनी मर्जी का यूज करूंगा। क्या आ गया? डिनाई ऑल। क्यों? जैसे मैंने उस पे आईपी चेंज किया, अपने ग्रेशियस आर जनरेट करी, ग्रेशियस आर स्विच के पोर्ट पे हिट करी, स्विच ने देखा था बड़ा यूजर अलाउड कौन सा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ यूजर मैंने आईपी दी किसको हुई थी? 106 को। ये रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? 1.10। देखो स्टेटस अभी भी क्या है इसका? अब मतलब इंटरफेस तो क्या है अब, लेकिन ट्रैफिक सेंड कभी भी नहीं होगा। अब एक चीज और देखो, शो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग, वो एंट्री भी क्या हो चुकी है 106 वाली? डिलीट। क्यों डिलीट हुई बताएगा कोई? बिल्कुल यार, मैंने जैसे उस पे मैनुअल आईपी दी, उससे पहले उसने क्या भेजा? रिलीज। उसने रिलीज पैकेट को भी पढ़ा, रिलीज पैकेट को पढ़ा तो उसको पता चल गया एंट्री मुझे टेबल से क्या कर देनी है? रिमूव। क्या कर देनी है? रिमूव। ये देखो यहाँ डीबग नहीं चल रहा था, डीबग बंद कर दिया था, वरना आप देख भी सकते हैं मैंने। हाँ जी यार, मेरे हिसाब से डीएससी पे रिलीज की वजह से। हाँ, क्योंकि ग्रेशियस आर पे मैक वेरीफाई होगा, आईपी नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखते हैं हम दोबारा। मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर पोर्ट पे साथ ही साथ क्या वेरीफाई हो? मैक। मैंने क्या कमांड चलाई? आईपी वेरीफाई सोर्स पोर्ट सिक्योरिटी। अब देखो स्विच पोर्ट, डन। अब देखो जी ध्यान से, शो आईपी वेरीफाई, सारे मैक भी डिनाई है और सारी आईपी भी क्या है? डिनाई। अब मैं क्या करता हूं देखो, चलो भाई देखो जी इधर दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड को दोबारा शट करके नो शट किया, दोबारा क्या भेजे? डिस्कवर।
ठीक है जी, 1 मिनट हो जाओ। ऑफर कर रहा है वो रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा, 1 मिनट रुको। दोबारा करते हैं एक बार, थोड़ा तो नहीं चाहिए वैसे ऐसा, फिर भी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा ना यूजर। एक मिनट जी, और भी चेक कर ले, कुछ किया तो नहीं हुआ किसी ने। Default interface fast Ethernet 1/0/5. Spanning tree port 5. Interface FA0/0 shut, और फिर अब देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए। अब आई रिक्वेस्ट, मिल गया आईपी, आ गई 107। ठीक है जी, देखो अब स्विच पे शो आईपी डीएससीपी, शो आईपी डीएससीपी स्नूपिंग बाइंडिंग। ठीक है जी, अब 107 की एंट्री आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप स्विच पे एक और चीज चेक कर सकते हो, शो आईपी वेरीफाई इंटरफेस पर इंटरफेस हटा दिया ना, तो दोबारा लगाना पड़ेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/5 आईपी वेरीफाई सोर्स पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट, शो आईपी वेरीफाई। ठीक है जी, अब क्या क्या चीजें चेक कर रहा है, आईपी भी और मैक भी। फिल्टर मोड क्या है, किस आईपी को अलाउड करेगा, इसको, किस मैक को अलाउड करेगा, इसको। और वीलन कौन सी अलाउड होगी, किस वीलन का मेंबर है, दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पोर्ट सिक्योरिटी। अब यार लेट्स से हम क्या करते हैं, यहाँ अनरोल कर देते हैं पहले। इस यूजर को क्या आईपी मिली हुई है 105। इस यूजर की आईपी मैं मैन्युअली चेंज कर देता हूं। लेट्स से वी आर असाइनिंग अ स्टैटिक आईपी टू दिस यूजर। कौन सी आईपी असाइन कर रहे हैं, स्टैटिक। तो इस केस में यूजर के साथ क्या होगा, यू आर क्लियर विद द कंसर्न। मैं कह रहा हूं मैंने एक यूजर को डीएससीपी के थ्रू आईपी दी ही नहीं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ वी विल क्रिएट अ मैनुअल बाइंडिंग। हम एक मैनुअल बाइंडिंग कैसे क्रिएट करेंगे, देखो जी। अब
मैंने क्या किया, इंटरफेस FA0/0 नो IP, या फिर मैं सीधा क्या करूंगा, IP एड्रेस 192.168 1 डॉट क्या दे दिया अपने आप को, 10 दे दिया। गई एंट्री 5 की। गई एंट्री 5 की, सॉरी हाँ 5 की, कोई प्रॉब्लम। IP क्या आ गई, 10। अब 10 के लिए स्विच के पास कोई भी DHCP स्नूपिंग डेटाबेस में एंट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्विच पे क्या बनाएंगे, मैनुअल एंट्री। कैसे बनाते हैं, मुझे बहुत चाहिए से कलर निकाल देंगे। ये सर का सिस्टम लग गया है। अरे याद आ जाएगी, रुक तो जा थोड़ी देर। ये ले आ गई याद, इतनी देर लगती है देख। हाँ भाई, मैं कहीं बाइंडिंग बनानी है मुझे। अब देखो, शो IP शो इंटरफेस FA0/0 सेक्शन एड्रेस, फाइन। ये मैक एड्रेस हो गया। वीलन कौन सी है, IP क्या है, इंटरफेस कौन सा है, चला दी। अब कई लोग क्या करते हैं, शो IP DHCP स्नूपिंग, हाँ एंट्री तो नहीं आई, पर ये ऐसे चेक ही नहीं करनी थी। शो IP मैनुअल बाइंडिंग, रुक जाओ यार, शो IP चलेगी धीरे धीरे कमांड, रुक जाओ याद तो आने दो। नहीं आई, शो IP सोर्स बाइंडिंग स्टैटिक इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 1/0/, और अभी भी नहीं आई। एक मिनट, शो रन में चेक कर लूँ आ रही है। वही तो यार, एक मिनट वो ठीक तो कर लूँ। किस पे करने दिए, भाई वाले को क्या कर दो, एंट्री ओवरराइट होगी। शो IP सोर्स बाइंडिंग इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 1/0/, आ गई। एंट्री टाइप कैसी है, स्टैटिक, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब लेट्स से इंटरफेस FA1/0/4 पे मैं क्या ऑन करना चाहता हूं, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। एंट्री आ गई किसके लिए,
1.10 के लिए सिर्फ किसको फिल्टर करेगा? आईपी को। पोर्ट क्या है? एक्टिव। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ मैनुअल एंट्री। इस तरह से आप क्या क्रिएट कर सकते हो? मैनुअल एंट्री। आगे चले तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो डन। स्विच पे सारे इंटरफेस क्या कर दिए? 1 पे सिर्फ एक कमांड चलाई मैंने, देखो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग, फिर कमांड क्या चलाई? ट्रस्ट। अब देखो दूसरी कमांड इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 से 5 तक, स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट। डन। सारे पोर्ट्स पे चला दी, पोर्ट फास्ट, एग्री। अब देखो क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टार। यहां से सारी डीएचसीपी एंट्रीज क्या कर दी? डिलीट, और सबको आईपी दोबारा दिलवा रहा हूं। अब इंटरफेस को शट और फिर नो शट। इस पे तो आओ इंटरफेस FA0/0 नो आईपी एड्रेस डीएचसीपी क्लाइंट आईडी FA0/0 शट, फिर इंटरफेस को नो शट। पहले शट और फिर इंटरफेस को नो शट। 8 और 9 के लिए आई है, अभी 10 के लिए नहीं आई। किसको आईपी नहीं मिल रही इस बार? फिर किसको मिल गई? 8। किसको मिल गई? इस बेचारे को भी, गरीब को भी नहीं मिली। यार तेरे सामने किया था। आनी चाहिए था आईपी नहीं आई भाई, क्या करें? आ गई। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब स्विच पे नेक्स्ट फीचर कौन सा ऑन करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो यार क्लियर करेंगे ही नहीं हम यार ऐसे। हाँ, मैंने तो डीएचसीपी सर्वर पे क्लियर की थी भाई, मैंने स्विच पे क्लियर नहीं की थी। सो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग, इस पे तो 9 के लिए बनी नहीं हुई। 9 किसको मिली है? आ गई ना। अब क्या तो देगा? ठीक है जी, मैं दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। मैंने पोर्ट नंबर 4 के लिए क्या डाल रखी है? मैनुअल एंट्री। ये रही, ये देखो जी, मैंने पोर्ट नंबर 4 के लिए क्या डाल रखी है? मेरे को इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? रिमूव कर दी, रिमूव। चलो भाई 4 से दोबारा आईपी करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट शट और फिर नो शट। चल भाई फटाफट चलो। शो आईपी इंटरफेस, क्या आईपी असाइन हो गई? होने तो दो। आ गई 111, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्विच पे कौन सा फीचर ऑन करूंगा?
रुक जाओ यार, सोचना पड़ेगा क्या कमांड। IP ARP इंस्पेक्शन VLAN 1, ठीक है भाई। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था ARP रिप्लाईज वैलिडेट होते हैं, ठीक है जी। और जिस पोर्ट पे मैं ARP रिप्लाई को वैलिडेट नहीं करना चाहता, उस पोर्ट पे मैं क्या कर लेता हूँ, उस पोर्ट को क्या बनाना पड़ता है, ट्रस्ट। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स से अपने गेटवे को पिंग करने की कोशिश करता है 1.1 को, तो कह रहा है मैंने ARP रिप्लाई को ही क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। क्यों? देखो यार, डायग्राम में जाके समझोगे मैंने इस इंटरफेस को IP कैसे दी हुई है, स्टैटिक। एग्री? DHCP सर्वर को IP कैसे दी हुई है, स्टैटिक। अब इस बंदे को जब सर्वर से बात करनी थी, इस बंदे ने क्या जनरेट करी, ARP किसके पास गई, मेरे DHCP सर्वर सबके पास गई, सर्वर के पास भी गई। सर्वर ने क्या दिया, रिप्लाई। जब रिप्लाई आया, मैंने डायनामिक ARP इंस्पेक्शन चला रखा। रिप्लाई क्या होना चाहिए, बाइंडिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई बाइंडिंग टेबल में एंट्री नहीं है, तो मैं इस इंटरफेस को क्या बना सकता हूं, ट्रस्ट। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। क्योंकि इस इंटरफेस पे कभी भी ARP रिप्लाई वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि इस IP के लिए कभी भी मेरी टेबल में एंट्री नहीं होगी। या फिर मैं क्या करूं, कैसी एंट्री बनाऊं, बाइंडिंग बनाऊं। कोई प्रॉब्लम? तो मैंने क्या किया, इंटरफेस FA1/0/1 को क्या बना दिया, ट्रस्ट बनाते ही दोबारा पिंग किया, हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे ARP रिप्लाई को कभी भी वैलिडेट नहीं करेगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? एक चीज और है इसमें यार, अब इसमें IP चेंज करके खुद देखनी है आपको। IP चेंज कर लेना एक जगह पे, स्टैटिकली प्रोवाइड कर देना, उसका ARP रिप्लाई कभी भी वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एंट्री कभी भी DHCP स्नूपिंग डेटाबेस टेबल में नहीं होगी। ठीक है भाई, एक चीज और बता देता हूं इसमें, यही किताब है आपकी? नहीं भैया, तो कोई और ही है यार, सुबह का बैच था ना। रिप्लाई को चेक कर रहा है ना, रिक्वेस्ट को थोड़ा चेक कर रहा है यार। अब मैंने जब तेरे को सीधा बोल दिया कि रिक्वेस्ट को चेक ही नहीं कर रहा, वो रिप्लाई को चेक कर रहा है। अगर वो पिंग करता है तो यार तो सर वो रिक्वेस्ट ड्रॉप होगी। क्यों रिक्वेस्ट ड्रॉप होगी? जब रिक्वेस्ट को चेक ही नहीं करेगा, वो रिप्लाई को चेक करेगा सिर्फ। आपके सामने लॉग क्या जनरेट हुआ था? सर वो रिक्वेस्ट को चेक नहीं करता। हाँ, तो सर जैसे जो विंडोज बेस्ड जो पीसी होते हैं, वो जो DSSR बेस्ड है, तो वो रिक्वेस्ट की फॉर्म भेजते हैं, और सब तो रिप्लाई की फॉर्म में भेजती है। ये जो DSSR बेस्ड है वो रिक्वेस्ट की फॉर्म भेजते हैं, तो ऐसे सर अटैक भी हो सकता है। हमें रिक्वेस्ट चाहिए DSSR चाहिए। मेरे हिसाब से तो यार मैं ये चीजें रियल टाइम में यूज ही नहीं करता। ये DHCP स्नूपिंग, IP वेरीफाई सोर्स, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन, इतना कुछ थोड़ा चला दूंगा सिक्योरिटी के लिए मैं। इससे बेटर चीजें हैं, पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करूंगा, कहानी खत्म। यूजर नेटवर्क में कनेक्ट ही वो हो पाएगा जो ट्रस्टेड होगा, बाकी को यूजर नेटवर्क में कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, बस। और आप कह रहे हो कि सोर्स को मैं चाहूं तो वेरीफाई करा सकता हूं। बाय डिफॉल्ट वेरीफाई क्या होता है, सिर्फ रिप्लाई। पर यार इतना डीप शिट नहीं जाते। एक चीज दिखानी है आपको, सिर्फ एक ARP ACL के नाम से एक चीज होती है, वो आपकी बुक में दी हुई है, इसलिए दिखानी है। कोई बना के नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ क्या होता है। हाँ देख लो ना यार, बुक पढ़ोगे आप बाद में रह जाए फिर। हाँ, क्या लिखा हुआ है ये?
हाँ जी चाचा, ऑफिस में, क्लास में। यार अभी तो नहीं है, मैंने आपसे लिए थे उस दिन, याद है? इस महीने तो नहीं हो पाएंगे यार। क्या हुआ? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ होता है तो बताता हूँ। आया समझ में? कह रहा है मैंने होस्ट को स्टैटिकली आईपी दे रखी है, जैसे कि ये लगा लो मैंने अपने गेटवे को स्टैटिकली आईपी दे रखी है, मुझे उसका आर रिप्लाई वैलिडेट कराना है, तो उसके लिए मैं स्विच पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? एक आर पे सीएल। भाई इस मैक को, इस आईपी को, इस पोर्ट पे क्या कर देना? अलाउड। दिस थिंग इज क्लियर। कैसे बनानी है बना के भी दिखा देता हूँ। आर एक्सेस लिस्ट का नाम क्या दिया? ठीक है जी, परमिट आईपी होस्ट, सेंडर की आईपी, ठीक है जी, मैक सेंडर का। ये मैक हो गया, कोई प्रॉब्लम? R1 का ही देख रहा हूं ना मैं। इसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी। लॉग लोग नहीं चाहिए मुझे, चल ठीक है। लॉग बस, क्या याद रखो, ये सिर्फ ACL बनी है, इसको अभी अप्लाई भी करना है। अप्लाई क्या करना है? देखो, IPR इंस्पेक्शन फिल्टर, ACL नेम और विच VLAN you want to apply. This thing is clear. अभी जो स्टैटिक कीवर्ड है उसका मतलब अभी बताता हूँ, ठीक है जी। अब लेट्स से मैंने क्या किया, इंटरफेस FA1/0/1 पे जाके नो IPR इंस्पेक्शन ट्रस्ट हटा दिया, एग्री। अब मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिंग करने से पहले क्लियर IPR 192.168.1 शो IPR, मैक एड्रेस अभी भी है, क्लियर IPR 192.168.1 क्लियर मान तो रहा नहीं है, कर देना चाहिए इसको डिलीट। वो तो करूंगा यार में यार, सोच रहा हूँ ऐसे ही हो जाए। डन। अब देखो, मैंने पिंग किया किसको? आईपी मिल गई इसको, और रिक्वेस्ट आई है इसके पास, एग्री, रिप्लाई भी सेंड कर दिया। पिंग भी हो गया। पिंग क्यों हो गया समझ में आया? क्योंकि मैंने उसको ACL से क्या कर दिया? परमिट कर दिया। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं आया बस, ऐसा लो, ठीक है जी। तो शो IPR ठीक है, कमांड होगी शो आर, ठीक है। एक मिनट हो जाओ,
ठीक है, नाम क्या था? शो आर दिख रही है एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आया शो IPR, दोबारा देखा, फिर एंट्री है, देखो अब यार दोबारा क्लियर करके देखूं, क्लियर क्लियर IPR 192.168 1 डॉट। ठीक है जी, शर्ट मारता हूं, शर्ट फिर नो शर्ट, देखो जी, चल भाई हो जा फटाफट, नो शर्ट डन। IP मिलने का इंतजार कर रहा हूं मैं, मिल गई 113। ठीक है भाई, पिंग मारा मैंने किसको? वन डॉट वन को दोबारा, ठीक है जी, दोबारा परमिट होगा। यार मैं लॉग देखना चाह रहा था, या मैंने लॉग कीवर्ड लगाया था ना, सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे क्या देगा, एक लॉग, जिससे मैं देख पाऊंगा, जिससे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि मेरा ट्रैफिक क्या हो रहा है, परमिट बिकॉज ऑफ द ACL। तो देखता हूं यहाँ कहीं ऑप्शन हो, क्या पता, देखो शो आर कोई ऑप्शन नहीं है इसमें तो ऐसा। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ARP एक्सेस लिस्ट बनानी आ गई आप लोगों को, कोई इशू इसमें नहीं। तो ये हाँ जी, जो लॉग्स होते हैं वो भी तो कहीं पे सेव होते हैं या फिर जैसी डिस्प्ले होते हैं वैसे ही फ्लैश हो जाते हैं? भाई आपको सिसलॉग पढ़ाया था और बताया था कि लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं। शो लॉगिंग करके आप देख सकते हो लॉग कहाँ सेव हो रहे। बाय डिफॉल्ट बफर लॉगिंग क्या है, डिसेबल्ड। आप इसको अनेबल भी कर सकते हो। लॉगिंग 7 is the severity level, 7 is the severity level। तो सर अगर स्विच पे ये वाला लॉग मैसेज अगर जनरेट हुआ होगा तो शायद वहाँ पे देख मैंने वहीं देखा था ना यार, नहीं आया ना लॉग मैसेज, ये देखिए सब चेक कर लिया यार, नहीं आया, आता तो दिखा देता। ये देख, उसके बाद एक कीवर्ड है स्टैटिक, इसका क्या मतलब है, पढ़ो आप। When ARP replies are inter- क्या बोल रहा है आप, क्या बाय डिफॉल्ट इंटरसेप्ट होती है रिप्लाईज, their contents are matched against the access list entries first. कह रहा हूँ उनका कंटेंट मैं किसके अगेंस्ट मैच करता हूँ। हाँ If no match is found, the DHCP snooping binding database is checked next. ठीक है जी, उसके बाद क्या चेक करता हूँ, DHCP स्नूपिंग डेटाबेस। कह रहा है यू कैन गिव द स्टैटिक कीवर्ड टू प्रिवेंट DHCP बाइंडिंग फ्रॉम बीइंग चेक्ड। कह रहा है उसमें सिर्फ आपकी ACL चेक होगी। लेट से आपने कोई नेटवर्क बना रखा है जहाँ पे आपने सबको सब यूजर्स को स्टैटिक IP दे रखी है, आप हर पोर्ट के लिए एक ARP ACL बनाओगे, एग्री? आप उसको अपनी ARP इंस्पेक्शन फिल्टर लिस्ट के साथ बाइंड कर दोगे। करने के बाद वो सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बोल रहा है कि इस केस में अगर आप चाहते हो कि कभी भी स्नूपिंग डेटाबेस टेबल चेक ना हो तो आप क्या कीवर्ड लगा सकते हो, स्टैटिक। पढ़ लो, पढ़ लो एक बार पहला पैराग्राफ, अब आप पढ़ो जहां छोड़ा था आपने। You can give the static keyword. यू कैन यूज द, तेज पढ़ो ना यार थोड़ा। You can give the static keyword to prevent the DHCP binding database from being checked at all. In effect, this create an implicitly deny statement at the end of the ARP access list. If no match is found in the access list, the ARP reply is considered invalid. इनवैलिड। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ किसको चेक करता है,
अपनी आर्प ACL को भी और DSCP स्नूपिंग डेटाबेस को भी। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी ACL चेक हो, स्नूपिंग डेटाबेस चेक ना हो, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो? स्टैटिक। नेक्स्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल कराऊंगा नहीं, पढ़वा रहा हूँ सिर्फ। हाँ, Finally, you can specify. आप पढ़ो पवन। Finally, you can specify further validations on the contents of the ARP replay packets. By default, only the MAC and IP addresses contained within the ARP replay are validated. बाय डिफॉल्ट क्या वैलिडेट होता है? ARP रिप्लाई में जो क्या होता है? MAC और IP. This does not take the actual MAC address contained in the Ethernet header of the ARP reply. क्या कहना चाहता है वो? To validate that an ARP reply packet is really coming from the address inside it, you must enable DI with the following configuration command. देखो क्या कह रहा है वो? कह रहा है आप क्या क्या वेरीफाई करा सकते हो उसमें? सोर्स मैक, अगर आप चाहो तो क्या वेरीफाई करा सकते हो? आप चाहो तो क्या वेरीफाई करा सकते हो? IP. ठीक है जी, कैसे? सोर्स मैक क्या वेरीफाई करेगा? कंसर्न क्लियर हुआ? थोड़ा सा नहीं हुआ, ऊपर से चलेगी बात। ये लाइन दोबारा पढ़ो। दिस डज नॉट टेक द एक्चुअल मैक एड्रेस कंटेन्ड इन द ईथरनेट हेडर ऑफ द ARP रिप्लाई। हाँ भाई, क्या कह रहा है वो? कह रहा है वो एक्चुअल ईथरनेट हेडर को कभी भी चेक नहीं करता। किसको चेक करता है? सिर्फ ARP रिप्लाई को, जो सेंटर मैक एड्रेस होता है ARP रिप्लाई में, उसी को चेक करता है। भाई देखो, ईथरनेट हेडर के ऊपर ही ARP हेडर लगेगा। अब वो क्या कह रहा है? आप ईथरनेट हेडर में भी अपने मैक एड्रेस को वेरीफाई करवा सकते हो। कैसे? बाय एडिंग द कीवर्ड। सोर्स मैक क्या चेक करेगा? सोर्स मैक चेक करेगा। देखो कि सोर्स मैक ईथरनेट हेडर में वही है ना जो सोर्स मैक किसमें है? ARP रिप्लाई में। दोनों सेम है ना, तभी तो कंफर्म होगा कि यही सोर्स है और यही इस ARP रिप्लाई को जनरेट कर रहा है। डेस्टिनेशन मैक, और उसके बाद में IP को भी वेरीफाई करवा सकता हूँ। रीड कर लेना इसको एक बार घर जाके। ठीक है जी, यहाँ इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आपका ये कहानी होती है, खत्म। तो एक बार देख लेना यार, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन, DSCP स्नूपिंग, IP सोर्स गार्ड, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके एक बार। अब हमारे 2 ही टॉपिक रह गए हैं। टॉपिक एक्चुअली 3 है, एक ना के बराबर ही है। ठीक है जी, पहला टॉपिक है मेरे पास दूसरा टॉपिक है मेरे पास तीसरा टॉपिक है मेरे पास प्राइवेट। कल पढ़ेंगे इसको, कल ही प्रैक्टिकल करेंगे। आने से पहले रैक पे काम लगाते हैं। ठीक है भाई।